Good morning, everyone. Let's study the topic contraception or the various methods of contraception of class 12, chapter 4, reproductive health. Right? So, in front of you, see the various contraceptive methods are there. You people have done the contraceptive methods in class 10th. Now, here there is a little more description of that same topic. देखिए in India today the major problem is the population give rise to lot of problems, so we have to deal with it. So the methods which are there to control the birth, those are known as contraceptive methods or birth control methods. Okay, let's read out. The regulation of conception by preventive methods or devices that limit the number of offsprings is called birth control or contraception. ठीक है जी. आगे दिया हुआ है an ideal contraceptive should be. This is a star board exam question. The question is usually of 3 marks. What are the characteristics of an ideal contraceptive? ठीक है, बड़ा important question है. देखिए, so it should be user friendly, it should be easily available, it should be effective, it should be reversible with no side effect. Reversible with no side effect means that after a few years of using the contraceptive methods, if the couple wants a baby, so they should stop it and should go for conceiving. Then fifth one, it should be non-interfering with the sexual drive, desire or the sexual act of user. Obvious, but obvious. आगे देखिए, then there are various methods of birth control. ठीक है, कौन से मेथड है? फर्स्ट आ रहा है नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड. कौन सा मेथड है? नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड. ठीक है, इन फ्रंट ऑफ यू 2 methods are there. फर्स्ट आ रहा है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस. इफ़ यू रिमेंबर वी डिड द मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने किया था ना एग्जैक्टली. अगर बोलते 14th डे पे ओवुलेशन होती है ना. और देखो वी पीपल से दैट ऑन द 14th डे ओवुलेशन टेक प्लेस, बट इट्स नॉट ऑलवेज श्योर. बोलते कि नियरली 10 to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, ओवुलेशन होती है. ठीक है, एवरेज अप्रॉक्सीमेट आइडिया 10 to 17th डे है. बोलते कि दैट इज़ द मोस्ट फर्टाइल पीरियड ऑफ द फीमेल. सो ड्यूरिंग दैट पीरियड no copulation should take place. That is known as periodic abstinence. Next is coitus interruptus or withdrawal. That whenever the male gametes has to be released into the female reproductive tract, that should be stopped at that moment. Next आ रहा है lactation amenorrhea. क्या आ रहा है? Lactation amenorrhea. This is very important 2-mark question for your board exams. देखो lactation is what? Lactation is when after the birth of the child the mother start lactating, mother start producing the milk, right? I told you many a times जो prolactin hormone है, prolactin hormone is responsible for milk production in the mothers. ठीक है, प्रोडक्शन कौन कराएगा? प्रोलैक्टिन. ऑक्सीटोसिन क्या कराता है? दैट इज वैसोकंस्ट्रिक्टर दैट इजेक्ट्स द मिल्क. देखो प्रोलैक्टिन मिल्क बनाएगा. हम देखो उस टाइम पे ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड प्रोलैक्टिन हार्मोन inhibits FSH hormone. FSH is follicle stimulating hormone. FSH is follicle stimulating hormone. इसको इन FSH क्या करता है? FSH फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है ना. ओवरी के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल के साइड पे ग्राफियन फॉलिकल्स है उसको स्टिमुलेट करेगा, मतलब ग्राफियन फॉलिकल की मैचुरेशन में हेल्प कराएगा. इफ़ देर इज़ नो FSH फॉर्मेशन, वो इनहिबिट हो रहा है, तो ऑब्वियसली कोई ओवुलेशन थोड़ी होएगी, ओवुलेशन नहीं होएगी. अगर ओवुलेशन नहीं होएगी तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होएगी. मेंस्ट्रुएशन है क्या कि जी ओवुलेशन हुई है, ठीक है, नई फर्टिलाइजेशन हुई, जो ब्लड वेसल्स है और फीमेल के मीट है वो रिलीज आउट हो जाए. अगर ओवुलेशन नहीं हुई तो देर इज़ नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, नो मेंस्ट्रुएशन. इसलिए इसको बोलते हैं लैक्टेशन एमेनोरिया, कि उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन नहीं होएगी एंड देर इज़ वेरी लीस्ट है. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलमोस्ट नील चांस, ऑलमोस्ट नील है, बट इट्स नॉट ऑलवेज 100%. ठीक है, a lady can conceive also during that period. It's not 100% sure. No, 100% sure वाला चांस नहीं है. ठीक है जी, आगे देखिए. देन कम द बैरियर मेथड्स. बैरियर मेथड्स में आ रहा है, देखिए फर्स्ट ऑब्वियसली कॉन्डम्स आते हैं that help to shield the reproductive organs. They are important because they control the STD, sexually transmitted diseases को ट्रांसमिट होने से रोकेगा. ठीक है, एग्जाम्पल्स कौन सी हैं उसकी? निरोध है इन केस ऑफ
रोद इन केस ऑफ मेल्स एंड इन केस ऑफ फीमेल्स फेमिटोम्स आते हैं. कौन से हैं? फेमिटोम्स हैं. अगर देखिए नेक्स्ट कम सर्वाइकल कैप्स, डायफ्रागम एंड वॉल्स. ये क्या, सर्वाइकल कैप्स, डायफ्रागम एंड वॉल्स भी यूज़ होते हैं टू कवर द रिप्रोडक्टिव openings. The thing is they are reusable and not reusable. ठीक है, इसका मेजर पॉजिटिव यही है कि ये reusable होंगे. They will prevent conception by blocking the entry of sperms through cervix. ठीक है, cervix क्लोज हो जाएगा तो मेल के मीट्स अंदर एंटर नहीं हो पाएंगे. राइट, आगे देखिए. देन कम द केमिकल मेथड्स. कौन से मेथड्स हैं? केमिकल मेथड्स. ठीक है जी, केमिकल मेथड्स में देखिए स्पर्मिसाइड्स है. स्पर्मिसाइड्स एज द नेम इंडिकेट दे विल किल द मेल गेमीट्स. ठीक है, मेल गेमीट्स को किल करेंगे. दे विल किल द स्पर्मेटोजोआ. स्पर्मिसाइड्स होते क्या क्या होंगे उसमें? लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, जिंक सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट. इसका बेसिकली फ़ायदा क्या है? दे इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी. इफ समबडी इज यूजिंग सम अदर contraceptive methods, so they increase the contraceptive efficiency, but sometimes the people are allergic to it, so you before using it people have to take care whether they are allergic to it or not. See, this chapter is full of full forms, lot of full forms. ठीक है, पेपर में आनी वो ध्यान से करिए. देखिए जी, नेक्स्ट हम आईयूडीज. आईयूडीज की फुल फॉर्म इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस. एज द नेम इंडिकेट यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करनी है चीज़ें. ठीक है, दैट इज़ नोन एज आईयूडीज. क्यों? क्योंकि यूट्रस इज अ मेन ऑर्गन वेयर इम्प्लांटेशन टेक प्लेस. ठीक है, वहाँ पे इम्प्लांटेशन की जाएगी. देखो नॉर्मली तो जो बेबी ब्लास्टोसिस्ट है इट यूजुअली गो इनटू यूट्रस, और वहाँ पे यूट्रस में ही जो बेबी की फॉर्मेशन होएगी, ग्रोथ होएगी, सारी नर्चरिंग यूट्रस में होएगी. सो उस पर डिवाइसेस इम्प्लांट की जाती है टू स्टॉप द ग्रोथ, स्टॉप द इम्प्लांटेशन. ठीक है, इसमें फर्स्ट देखो, दीज डिवाइसेस कंटेन आइदर कॉपर और प्रोजेस्टेरोन. देखिए प्लीज रिमेंबर, जो कॉपर क्या करता है? कॉपर डिक्रीजेज द मोटिलिटी ऑफ मेल के मीट्स की मोटिलिटी, मूवमेंट को. ठीक है, मूवमेंट को कम कर देगा. मूव नहीं कर पाएंगे मेल के मीट्स, देन देयर इज नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन. प्रोजेस्टेरोन देखिए आगे आप करोगे क्या, ओरल पिल्स वगैरह सारा कुछ कर क्या रहे हैं? दे आर डिस्टर्बिंग द हार्मोनल बैलेंस. हार्मोनल बैलेंस डिस्टर्ब होने से क्या होएगा? आगे जो नॉर्मल प्रोसेसेस है, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, वो नहीं हो पाएंगे. ठीक है, प्रोजेस्टेरोन वो जो आईयूडीज है यूट्रस के अंदर इम्प्लांट की जाएगी, दे विल बी कंटिन्यूसली रिलीजिंग द हार्मोन. ठीक है, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होएगा और आगे इम्प्लांटेशन नहीं होएगी. इसमें फर्स्ट आ रहा है कॉपर रिलीजिंग. दैट आई टोल्ड यू, कॉपर रिलीजिंग क्या करेगा? मोटिलिटी डिक्रीज करेगा मेल के मीट्स की. एग्जाम्पल इसकी आपको पता है ना, आपको एमसीक्यू भी आना है बोर्ड एग्जाम में, दैट यू शुड बी नोइंग. एमसीक्यू भी फॉर्म में अगर कॉपर टी कॉपर 7 आ जाए वो आपको पता चल जाएगा ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है. ये याद रखना. मल्टी रोड 375 और पैरागार्ड भी कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है. दैट यू आर टू रिमेंबर, प्लीज रिमेंबर इट केयरफुली. ठीक है जी, आगे आ रहा है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी. हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है, कौन से आ रहे हैं? Progesterone, LNG20, Mirena. These are the IUDs which are producing the hormones. यूट्रस में इम्प्लांट की जाएंगी. ये डिस्टर्ब करेंगी हार्मोनल बैलेंस को एंड डिस्टर्ब द नॉर्मल प्रोसेस. फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी. देन कम नॉन मेडिकेटेड आईयूपीज. नॉन मेडिकेटेड आईयूपीज है लिपिस लूप. ठीक है, लिपिस लूप यूट्रस में इम्प्लांट की जाती है, जिसकी वजह से यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी. ठीक है, आगे देखो. सी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट 2 मार्क का क्वेश्चन है कि हाउ डू आईयूडीज प्रिवेंट कंसेप्शन. हाउ डू आईयूडीज प्रिवेंट कंसेप्शन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या करता है? इट इंक्रीजेज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स. ठीक है, स्पर्म्स को किल करना स्टार्ट करेगा. फैगोसाइटोसिस मीन्स किलिंग ऑफ स्पर्म्स बाय सप्रेसिंग द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग एबिलिटी ऑफ द स्पर्म्स बाय रिलीजिंग कॉपर. दैट आई टोल्ड यू, कॉपर रिलीज करके क्या करते हैं? स्पर्म की मोटिलिटी मीन्स मूवमेंट को डिक्रीज करेंगे एंड ऑब्वियसली डिक्रीजिंग द फर्टिलाइजिंग एबिलिटी ऑफ स्पर्म्स. देन द थर्ड इज IUDs. Hormone releasing IUDs make the uterus unsuitable for implantation and cervix hostile to sperms. ठीक है, I told you हार्मोन रिलीज करने से क्या होएगा? यूट्रस अनसूटेबल हो जाएगा इम्प्लांटेशन के लिए और सर्विक्स हॉस्टाइल हो जाएगा. मेल मीन्स सर्विक्स के आगे मूव नहीं कर पाएंगे.
राइट। देखो next are oral contraceptives. Oral contraceptives that I initially told you. Oral means we are taking it in form of pills, medicines through the mouth. These are what? These are the preparation of hormones. कौन से hormones है? Either progesterone or progesterone estrogen combination. ठीक है, ये फीमेल लेती है and this disturb the hormonal balance, जिसकी वजह से ना फर्टिलाइजेशन हुई. अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो इम्प्लांटेशन नहीं आई. ठीक है, इम्प्लांटेशन आगे अगर मतलब नहीं हो पाएगी, अगर हो भी गई है तो आगे ग्रोथ नहीं हो पाएगी. ये करता क्या है? दे ऑल्टर और इनहिबिट ओवुलेशन, fertilization and also modify the quality of cervical mucus to prevent or retard the entry of sperms. ठीक है जी. सर्विक्स है क्या? कि सर्विक्स के थ्रू, सर्विक्स क्या है? सर्विक्स यूट्रस का बिल्कुल नीचे वाला पार्ट है. ठीक है, सर्विक्स म्यूकस होता है, प्लगिंग होती है कि जो आई टोल्ड यू सर्वाइकल जो मसल्स है, दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन ह्यूमंस, जो बेबी को अंदर रखते हैं फॉर 9 months. इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट वन. वो क्या करता है? सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी चेंज करता है. ठीक है, जिसकी वजह से ना मेल गमीट्स अंदर जा पाएंगे. ठीक है, तो आगे तक प्रोसेस तो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, आगे कह दिए. देखो ओरल पिल्स आर जनरली टेकन फॉर द पीरियड ऑफ 21 days. बोलते पहले फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन से लेके 21 days खाना है. देन आफ्टर गैप ऑफ 7 days फिर रिपीट करना है टिल द फीमेल डिज़ायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन. ठीक है, बोलते हैं कि दे आर वेल एक्सेप्टेड एंड विद लेस साइड इफेक्ट. बट जस्ट इमेजिन you are disturbing the hormonal balance and somehow it will create the problem. Examples are Maladi, Saheli, which are very commonly used. ठीक है, ये इंडियन मेड कॉन्ट्रासेप्टिव है. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है सहेली. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है सहेली फॉर फीमेल्स. ठीक है, इसमें क्या होएगा? इट इज़ नॉन स्टेरॉयड, कोई स्टेरॉयड प्रेजेंट नहीं है. किसकी प्रिपरेशन है? सेंटक्रोमन की. किसकी प्रिपरेशन है? सेंटक्रोमन की. ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है कि जस्ट वंस अ वीक 1 pill द लेडी हैज़ टू टेक एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय CDRI. ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इट कैन कम टू यू इन द एग्जाम. CDRI इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट. सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने बनाया ये याद रखना. देन कम इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स. इंजेक्टेबल मीन्स इंजेक्शंस लगाते हैं कुछ लोग, कुछ लेडीज़ इंजेक्शंस लेते हैं एवरी 3 months. ठीक है, एवरी 3 months इंजेक्शन लेते हैं. किसके? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन का. अगेन क्या कर रहे हैं? प्रिवेंटिंग ओवुलेशन. ओवुलेशन नहीं हो पाएगी. एस प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो गया, बैलेंसिंग द हार्मोन्स. ओवुलेशन नहीं होगी. ठीक है, आइदर इंजेक्शन फॉर्म में लेते हैं या इम्प्लांट्स अंडर द स्किन. मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो आर्म है, आपकी आर्म की एल्बो के ऊपर वाली जो स्किन है ना, उसके नीचे इम्प्लांट लगा देते हैं जो स्लोली हार्मोन रिलीज़ करता है. हार्मोनल इम्बैलेंस रहेगा, इसकी वजह से ओवुलेशन नहीं हो पाएगी. ठीक है जी. आगे है इम्प्लांट्स बोलते हैं. इम्प्लांट्स एग्जैक्टली की सबक्यूटेनियस इम्प्लांटेशन है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन की. ठीक है, आर्म के स्किन के नीचे वो इम्प्लांट डॉक्टर्स लगा देते हैं. ठीक है, उसकी वजह से स्लोली हार्मोन रिलीज होता रहेगा विच विल ब्लॉक द ओवुलेशन एंड थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट स्पर्म एंट्री. ठीक है, इसका इफेक्टिव पीरियड बोलते हैं लॉन्गर है. इसका देखो 5 years है. इंजेक्शन का क्या था? एवरी 3 months लगाना पड़ता था. और इम्प्लांट का बेसिकली क्या है? 5 years. ठीक है जी, 5 years है. ठीक है, नेक्स्ट हम एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मॉर्निंग आफ्टर पिल्स. देखो यू नो जस्ट इमेजिन इफ कोपुलेशन टेक प्लेस एंड विदाउट यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव. सो देखो सपोज फर्टिलाइजेशन हो गई है ना, जाइगोट फॉर्मेशन भी होगी, पर यूट्रस तक आने में टाइम लगता है. ठीक है, उस टाइम से पहले अगर ये बर्थ कंट्रोल पिल्स ले ली जाएँ विद हाई डोज बर्थ कंट्रोल पे ले ली जाएँ तो द इम्प्लांटेशन कैन बी अवॉइडेड. बेबी ग्रोथ, बेबी फॉर्मेशन नहीं होएगी. ठीक है, ये है कि जस्ट हाई डोज ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, वही हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं जिसकी वजह से आगे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी. पर बोलते सिर्फ विद इन 72 hours
अगर ले ली जाए ओनली देन इट्स फाइन, अदरवाइज आफ्टर दैट इट्स नॉट पॉसिबल। एग्जाम्पल्स है आई पिल 72 और अनवांटेड। ठीक है जी। आगे देखिए सर्जिकल मेथड्स है। सर्जिकल मेथड्स दो मेथड है इन केस ऑफ बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। इफ़ यू टॉक अबाउट मेल्स, ठीक है, मेल्स में देखिए, मेल्स में वी नो टेस्टीज है, टेस्टीज के जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, वास्ट एफरेंस। वास्ट एफरेंस को कट और सील कर देते हैं डॉक्टर्स। सर्जिकल मेथड है। तो प्लीज रिमेंबर दीज सर्जिकल मेथड्स आर अडॉप्टेड बाय द कपल्स हु वांट permanently they don't want the kids, only then it's not temporary, ये permanent method है। ठीक है, कटिंग एंड सीलिंग। वास्ट रेफरेंस कट की है इसलिए इस मेथड को बोलते हैं वैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी बोलते हैं। द स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट रेफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रॉटम इन मेल्स, राइट। आगे देखिए नेक्स्ट काम है ट्यूबेक्टोमी। क्या ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, जो फीमेल्स में फिलोपियन ट्यूब है ना, फिलोपियन ट्यूब की कटिंग और सीलिंग होती है जिसकी वजह से फीमेल के मीट बनेगा पर बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, मेल्स में भी मेल का मीट बनता पर बाहर नहीं जा पाता, फीमेल का मीट बना पर बाहर नहीं जा पाया। ठीक है, फीमेल्स में क्या बोला इसको ट्यूबेक्टोमी, मेल्स में बोला वैसेक्टोमी। पर जस्ट इमेजिन यहाँ पे हम सिर्फ गेमीट्स को बाहर निकलने से रोक रहे हैं, हाँ। फीमेल का मीट आ गया फिलोपियन ट्यूब तक आ गया, बट आगे फिलोपियन ट्यूब कट सील कर दी जिसकी वजह से मेल का मीट वहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। पर देखो द टेस्टीज एंड ओवरीज आर प्रोड्यूसिंग द गमीट्स कंटिन्यूसली, तो आपको लगता है प्रॉब्लम नहीं होएगी, इकट्ठे हो जाएंगे गमीट्स, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होएगी। ठीक है, प्रॉब्लम्स विल बी देयर विद टाइम, लेस प्रॉब्लम्स है बट प्रॉब्लम्स आर यूजुअली देयर। ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी। ओके बच्चे, टेक केयर।